We can start now with all the audience that we have here. Thank you all for coming in, and I'm quickly going to be demonstrating a nice upstyle. आप लोग बाहर नहीं, आप अंदर आके भी देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं. Don't worry. So all those audience who are standing outside, and if you would wish to come in and see some of the greatest hairstyles that we're going to demonstrate today, you're most welcome, and the seats are all yours. You can come in, join us, have some fun. Let's share some knowledge with each other, and this is going to be an amazing 45 minutes that I'm going to share of mine with you. Okay? Right? I have purposely chosen a model who has long hair. मैंने purposely एक ऐसे मॉडल को चूज किया है जिनके बाल काफी ज्यादा लेंदी है, और हम कैसे लेंदी बालों पे भी अप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, वो हम आज क्रिएट करेंगे. The look that I'm demonstrating today is going to be on a gorgeous looking girl. I would like to invite her with good music. Can I have Deepa with me, please? Joining us, and it's our pleasure to be here and do your upstyle today. We had you yesterday, we created some nice look yesterday as well, and today also we're gonna do something really nice for you. Yeah, all yours. Okay, let's quickly see what we're going to do for Deepa here. And what's the tool that I'm going to be using today. कल जो मैंने स्टाइल बताया था उसमें मैंने एक अलग टोंग साइज यूज किया था. आज जो मैं आपको स्टाइल बताऊंगा उसमें मेरा टोंग साइज कुछ अलग है. So yesterday I used a tongue size which was 28 if you remember. Today the tongue size that I'm using is 25. आज मैं 25 साइज का टोंग यूज कर रहा हूँ, और मैं इसको यूज करते हुए लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ. Okay? Let's quickly get started. I'm gonna bring this up here. At Iconic, we believe in safety a lot. So just the way I had demonstrated yesterday also, हम जब भी टोंग्स करते हैं तो हमारे टूल्स को, हमारे ट्रॉली को, हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी we always keep tools. So we at Iconic have something called as hot pad. हमारे पास एक hot pad है जिससे कि जब आप टोंग यूज कर रहे हैं, हम यूजुअली ट्रॉली पे रखते हैं, हमें डर लगता है अरे ट्रॉली पे मेल्ट हो जाएगा, हम उस पर टॉवल रख देते हैं, गीला टॉवल रख देते हैं, यूज किया हुआ टॉवल रख देते हैं, और उसके ऊपर टोंग्स रखते हैं, which somewhere looks a little unhygienic in the salon. The simplest way to do it is use a hot pad. ये हमारा हीट पैड, हॉट पैड, आप जो बोलना चाहे उसे बोल सकते हैं. I call it hot pad because it takes the heat. अब ये टोंग ऑन है already and it is at 210 degrees, and this is the heat pad. See what it does. Nothing. It will just hold it very well and not bring any harm to your hand. इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इससे पकड़ने के लिए यूज करेंगे. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका हीट जो है वो नीचे ट्रॉली तक नहीं जाने देता है, and it holds it very nicely. So आपको ये हीट पैड आपके ट्रॉली पे रखना है, and then you can start using your tongs. All right? I'll quickly demonstrate the hairstyle that we're doing today. I'm using a nice tail comb. This is also another tail comb that we've recently launched by Iconic. It has a nice pin at the end and got good studs, which brings in a lot more flexibility into your shaping. आप जब भी एक हेयर स्टाइल कर रहे हैं, आपको जो flexibility और support चाहिए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिलता है. So I'm going to use this. What we've done for Deepa's prep is, हमने दीपा के prep के लिए क्या किया है, हमने एक tight ponytail बनाया है on the back, कीपिंग द चीक बोन इन माइंड, यानी कि जैसा यहाँ पे इनका चीक बोन है बिल्कुल वहीं पे एक छोटा सा पोनीटेल किया है. Now the ponytail is very sleek. If you go to see, I've kept a very nice and sleek ponytail, and in this ponytail itself I'm going to start using the tongs. यानी कि आपको पहले tongs नहीं करना है, पहले आपको एक sleek ponytail करना है, उसके बाद आप tongs करेंगे. Okay? That's just like how we've done it here. I've left a few sections so that I could use the tongs in front of you guys to show you. यहाँ पर कुछ बालों में हमने ऑलरेडी टोंग कर रखे हैं. सो यू कैन सी दीज टोंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. यही टोंग्स हमने with tong size 25 we've done this, and I'm going to do the few more sections which are left here, especially to show it to you guys here. Watch it how we did it and you will also come to know. What you simply need to do is
Take a little horizontal section from the ponytail itself. आप ponytail के अंदर से ही छोटा सा section लीजिए. Don't try to keep it too thick because the hair is already thick. जब आप एक ponytail में बालों को डाल देते हैं ना, तो because of the pony it becomes very tight. यानी कि thickness जो है ना, बालों की thickness वो सब एक साथ आ जाता है बालों के अंदर. तो अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सेक्शन जो अपन यूजुअली ओपन हेयर में लेते हैं, आप उतना बड़ा लेने जाएंगे, वो उतना दिख रहा है, वो उतना है नहीं, बिकॉज ऑल द हेयर इज कम अप टुगेदर. इट्स अ वेरी थिक सेक्शन, तो यू शुड वर्क विद दीज टाइनी सेक्शंस. इतने टाइनी सेक्शन से आपको काम करना है, तब आपका इतना सेक्शन ऑटोमेटिकली बन के आएगा. ऑलराइट, दैट्स व्हेन यू विल गेट नाइस टोंग्स लाइक दिस. अगर आप ज्यादा मोटे सेक्शन लेंगे, it will just wave out and it will not look very fancy or very romantic. So try to keep it slightly lesser. Now I'm opening the tong. Opening in the sense, starting with the clamping. How you gotta do this is, you will take this tong और आपको बिल्कुल root से start करना है. Do not start from the end, start from the root. When I say root does not mean from here, but the root of the bungee. हमने यहाँ पे एक bungee band डाला है. Bungee band आप सभी को पता होगा. हमने यहाँ पे एक बंजी बैंड डाला है, बिल्कुल उससे नजदीक रखते हुए आप कर सकते हैं. इट विल नॉट डैमेज द बंजी एट ऑल. इट इज हीट प्रोटेक्टेड. ओके, सो यू आर गोना स्टार्ट विद द बंजी हियर, बिल्कुल रूट से रखते हुए. व्हाट्स द टेक्निक दैट आई एम यूजिंग? मैंने टोंग साइज ओपन किया है, बालों को एक बार घुमाया, टोंग बंद किया और फिर मैंने मेरे टोंग्स को पूरा रोटेट किया. फिर वापस बालों को घुमाया, उसके बाद वापस से टोंग को 360 डिग्री रोटेट किया. You're watching my hands, how I'm doing this. वापस से बालों को घुमाया लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से. ये टोंग्स से आप देख रहे हैं how I'm using my thumb, I'm using my finger to just roll it in, roll it in, roll it in. I'm doing this. Okay? आप इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे and do this and create a nice curl on the hair. ऐसे करके आपको उसे 10 seconds तक रखना है. You will leave it for 10 seconds. So you should count it by yourself. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once you're done with your 10 seconds, then you will take it up in your hands. आपको अपने हाथों में लेना है उसे और ना कि उसे डायरेक्टली छोड़ना है. तो आप वो कैसे करेंगे? आप इसका माउथ नीचे करेंगे टोंग का and then you will slightly leave it. Once you have it, just use your fingers and थोड़ा सा उसे स्प्रिंग करते हुए ऐसे नीचे छोड़ दीजिए. Okay? You see? This is the section that I've just done right now. I'm just gonna hold it and leave it here nicely. Okay? Do that and then again go to the next section. I'm taking another section of mine. Here I have this. Comb it up nicely with your tail comb. जब भी आप tongs करेंगे तो always make sure that the hair is not tangled. It should be detangled. बालों में कहीं पर भी knots या tangles नहीं होने चाहिए, वरना आपका जो curl है ना, वो कर्ल नहीं वेव आने लगेगा और वो वेव मेसी आएगा, क्लीन नहीं आएगा. ऑल्दो हम जो अभी करने वाले हैं वो एक मेसी बन है, बट मेसी करने का भी एक क्लीन तरीका होता है ना, तो हम वो क्लीन तरीके से मेसी बन क्रिएट करना चाहते हैं. ऐसा आपका एंटायर मोटिव होना चाहिए. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग टू डू इट वेरी क्लीन एंड नाइस. आई एम टेकिंग अ सेक्शन, detangle the hair very nicely, hold it in your hands, watch the tonging once again. बिल्कुल बिना डरे आप रूट से ले सकते हैं. एक बार बालों को घुमाना है और फिर टोंग्स को पूरा 360 आपको रोटेट करना है. Then again you will roll the hair, roll the section and you will take the tongs. Then again roll the section and you will roll the tongs. ऐसे आपको कब तक करना है? जब तक कि आप बालों के एंड पे नहीं आ जाते. Until you reach the end of the hair. Okay? So you start here and move towards the roots. थोड़ा रूट से नजदीक जाइए. Do not hurry and do not worry. Okay? ज्यादा घाई भी नहीं करना है वरना आपका टोंग स्लिप होने लगेगा, और ज्यादा डरना भी नहीं है. आप जाइए, उसका हीट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, बंजी को कुछ नहीं होगा. ओके, वंस योर 10 seconds are done, how will you do it? जैसे अभी बताया था, आप इसे रोल करेंगे. माउथ, ये टोंग का माउथ है ना, माउथ को नीचे की तरफ करना है. उसके बाद इस क्लैंप को ओपन कीजिए. So you will just open the clamp. The tong will come in your hands. ये आपके हाथों में आ जाएगा बहुत easily. Once you have that, just hold the end of it and give it a little spring. Let it sit nice and natural. Okay? Next section. This is going to be my last section. एक बार last बार देख लीजिए how I'm doing this. Just comb the hair very nicely.
Remove all the tangles from it. Also, just to secure it, oh sorry, the sprays are here. I forgot. You should use a good hair dressing spray because it will help you a lot when you're dressing the hair. हेयर ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हेयर ड्रेसर कर रहा है उसी से सब कुछ होएगा. मैं पर्सनली एज अ हेयर ड्रेसर सारे ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे खुद को फील होता है कि अगर मेरे पास ये टूल नहीं होता, लेट्स से मेरे पास ये टोंग नहीं होता और अलग अलग साइज में नहीं होता तो मैं वो कैसे क्रिएट करता जो मुझे करना था. अगर मेरे पास ये स्प्रे नहीं होता जिससे कि मैं फ्लेक्सिबल होल्ड दे सकता हूँ, अगर मेरे पास दूसरा वाला स्प्रे नहीं हो सकता जिससे मैं हार्ड होल्ड दे सकता हूँ, तो मैं वो कैसे क्रिएट करता. So considering all these things, I have huge respect for all the brands who create these kind of tools, who create these kind of products, and I really appreciate them. तो आपके पास ये sprays होने बहुत ज़रूरी है, ये tools होने बहुत ज़रूरी है. अब इस स्टाइल को जो हमने create किया है थोड़ा fix करने के लिए I'm going to use a little spray. Okay? अगर आप चाहे तो टोंग करने से पहले भी स्प्रे कर सकते हैं, उसमें आपको डरना नहीं है. ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कितना स्प्रे करना है और कितने पे आपको स्टॉप हो जाना है. सो आई हैव जस्ट स्प्रेड हियर. ये मेरा लास्ट सेक्शन है, ये देख लीजिए एक बार लास्ट अच्छे से कि कैसे टोंग करना है, बिकॉज टोंग्स करना पूरे प्रोसेस का और पोनी टेल करना ये थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स है. इसके बाद भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आई वुड नॉट से कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट्स से लिटिल क्रिएटिव स्टाइल ऑफ डूइंग अ मेसी बन, बट यू विल स्टिल गेट इट. वो फन है, दैट्स वेरी फन. आपको लगेगा कि ये मैं अभी जो मैं इसके बाद टेक्निक करने वाला हूँ ना, आप मैं इस कर्ल्स को कैसे बिठाऊंगा, आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं कब सैलून पे जाऊँ और मैं भी कब ये करूँ क्या, एक बार मुझे करके देखना है. सो लिटरली इट्स दैट इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच. बट उसके लिए आपका बेस सही होना जरूरी है ना. तो दिस इज द बेस. वॉच इट वन लास्ट टाइम दैट हाउ आई डू दीज टोंग्स. I'm just taking this one particular section in my hand, nice and neat. Hold it up. Make sure there are no tangles into it. Tong size number 25 by Iconic Professionals. हमारा brand है Iconic Professionals. And just use this tong. एक बार clamp open किया, बालों को घुमाया, उसके बाद tong को पूरा 360 घुमा देना है. फिर वापस बालों को घुमाया एंड टोंग्स को 360 घुमाएंगे आप. ओके, देन अगेन बालों को घुमाया और 360 घुमाएंगे आप. सो कीप डूइंग दिस, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप डूइंग दिस until you come to the end of the hair. जब तक कि आप बालों के एंड पे नहीं आ जाते. ओके, once you come to the end, just wait it out for 10 seconds. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leave it up towards the mouth of the tong. And just create a nice spring into it. Okay? एक अच्छा स्पाइरल बन के आना चाहिए उसमें. You'll do this. यहाँ पे आपका tong का काम खत्म होता है, तो you can keep the tong away. Okay? Although I'm keeping this away, it's the most important part. Remember, you should have a good tong. Now what we're going to do is something very interesting. I'm going to be putting a donut. Donut पता है सभी को कौन सा? खाने वाला नहीं तो बालों में लगाने वाला, right? I'm going to use a donut wherein I'm going to put all my messy bun into this donut very nicely. आपको क्या करना है? You should try. मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि मेरा जो पिन है जहाँ से ये जुड़ता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आए ताकि वो दिखे ना, छुप जाए. ओके, सो आई मोस्टली ट्राई टू डू इट लाइक दिस. मैं इसे ऊपर रखूँगा, इसे नीचे ले जाऊँगा और इसका पिन देख के इसे जस्ट अटैच इट नाइसली. ओके, नाउ यू ऑफ कोर्स वांट दिस टू बी वेरी टाइट इनफ हियर, सो यू आर गोइंग टू यूज सम नाइस U pins. We have these U pins by Tweaks. Tweaks is also our brand. So I'm going to use these U pins. Also we have Iconic के भी हमारे पास U pins है which are really nice.
यू कैन यूज दैट ऑल्सो। आप इसे 4 साइड से सिक्योर करेंगे। यू शुड टेक दिस यू पिन, पहले इसे रिवर्स साइड पे डालिए एंड ओपन दिस अप नाइसली हियर एंड पुश इट इनटू द हेड। ओके, ये एक साइड से लॉक हो गया। सिमिलरली टेक फ्रॉम द अदर साइड, ट्राई टू डू एनी 2 ऑफ दीज। या तो आप 1 2 3 4 यहां से लॉक कीजिए, या फिर आप क्रॉस बनाइए 1 2 3 4 like this or else like this. Okay, I personally prefer this, so I'm just going to lock this up nicely here. जैसे इस तरफ लॉक किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ से भी लेंगे and push it in very nicely. ये दोनों साइड से बहुत सिक्योर हो गया अभी। Take another one. Push it on the third side and last one. अब आप अगर देखेंगे ये डोनट जो है बहुत टाइट रह गया है। अब मैं इसको खींचूंगा भी ना तो भी ये बाहर नहीं आएगा। ओके, इट्स जस्ट गॉट स्टक फ्रॉम ऑल द 4 sides very nice and neatly. Now comes the most interesting part that we all been waiting for and I have been promising you guys. What I'm going to do next is, you can use this brush or you can use this brush, whichever you're more comfortable with. Just take those sections and slightly brush it off. पूरा नहीं ओपन करना है, लेकिन सेक्शन बाय सेक्शन लेके आप इसे थोड़ा सा कोम कर देंगे. You will see a nice ponytail starting to come out. Take another section. Start brushing it. Be very gentle. जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये पूरा दम लगा के करना पड़ेगा क्या. नहीं, बहुत जेंटल, बहुत ही जेंटल तरीके से. आपको ज्यादा उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट बी एज जेंटल एज यू कैन. लेट योर वेव फ्लो इनटू इट. Last section here also. Use a little spray for support. Your styling product will help you support the style. Once you're done with this, you will have a nice ponytail which comes out like a wave into the hair and sits nicely. Look up. Turn your head left, right. You will have this nice thick ponytail into a wave. Now you have to dress this up. What you're going to do is, watch carefully. You take your tail comb and start from the top section. मैंने टॉप से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है. I will take this section in my hand. I will divide these into 2. I'm taking this and dividing this into 2. Now you put it like a twist. जैसे हम twist करते हैं ना वैसे. तो I'm just using my hands and twist, 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 twist. Okay? ऐसे करके मैं end तक आ गया. इसे थोड़ा सा लूज कीजिए. अब टाइट ट्विस्ट नहीं रखना है. So I'm going to loosen this up, loosen this up, loosen this up, loosen it up, loosen it up, loosen it up. ये मैंने थोड़ा लूज कर दिया. आप लोगों को स्क्रीन पे और यहाँ दिख रहा होगा. दिख रहा है, ये थोड़ा लूज किया. ये लूज करने के बाद आप सिर्फ एंड में थोड़ा सा पकड़ेंगे बालों को. Literally just 2-3 hair in this hand. Hold this and push it inside. You saw this? Looks interesting, right? Just push this inside and just, ये मेरे हाथ में कितने बाल है? सिर्फ 2 या 3. इससे ज्यादा रखेंगे तो पुश नहीं होएगा बाल. Okay? So सिर्फ यहाँ पे ऐसे 2 से 3 strands रख रहे हैं and you push this in. The moment you push this in, watch me, you get nice flower. You see this? You get a very nice flower here. You like it? You just push this flower inside now. Hold this up and use your U-pin to tuck it in. आपको अपना U-pin लेना है और इसे अच्छे से डोनट के ऊपर बिठा देना है. ओके, अभी जब ये बैठेगा ना तो कहीं पे ऐसा वेव आएगा, कहीं पे ऐसा वेव आएगा, कहीं से बाहर भी जाएगा. इस सब को हम एक साथ एक अच्छे जगह से सेट करेंगे. लेकिन पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? यू जस्ट क्रिएट दीज वेव्स एंड पुट इट इन. यू क्रिएट दीज वेव्स एंड पुट इट इन.
फिर लास्ट में जब आपके सारे फ्लावर्स को आपने बिठा दिया है तो उन फ्लावर्स को हम धीरे धीरे से लास्ट में जब सारे फ्लावर्स डोनट पे आ जाएंगे तब हम उसे सेट कर देंगे. ओके, दैट इज जस्ट अ 2 मिनट जॉब, डोंट वरी अबाउट इट. याद रहे ये इससे ज्यादा मेसी नहीं दिखना चाहिए. हम मेसी बन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेसी बन का मतलब ये नहीं आप एकदम पूरा फ्रिजी, मेसी, डर्टी. देयर इज अ डिफरेंस, एज आई टोल्ड यू गाइस. मेसी हेयर कट, मेसी हेयर स्टाइल, मेसी ओपन हेयर स्टाइल, मेसी बन, मेसी अप स्टाइल, ये सब करने का भी एक क्लीन तरीका होना चाहिए. ओके, मेसी का मतलब ये नहीं हर एक चीज वैक्यूम करके छोड़ दिया, अरे मेसी तो करना है. दैट्स नॉट मेसी, इट शुड बी क्लीन एंड मेसी. ओके, आपके मेस में भी these waves, you see that wave, it should come out nice and beautiful. Okay, I'll continue the same. अभी क्या करना है, आपको हेलो बनाना है. आपने ऊपर से एक सेक्शन लिया, आपका डोनट कैसा है, राउंड. आपके सेक्शन भी राउंड ही जाना चाहिए. आपने ऊपर से एक सेक्शन लिया, अभी आप यहाँ से एक सेक्शन लीजिए इस तरीके से डायगोनल. सेम यहाँ पे एक सेक्शन लिया, यहाँ पर भी एक डायगोनल सेक्शन लीजिए एंड ट्राई टू कवर योर डोनट कंप्लीटली दैट वे. ओके, so I'm going to take this section from here. Bring it up. Again, divide this into 2 parts. Twist, 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 twist. Twist करने के बाद लास्ट में सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स हाथ में रखने हैं एंड wait, we'll do this once. Nicely twist, slightly open it, थोड़ा पीछे पुश करके just push this inside and take your wave, move up, leave it loose and natural. आपके waves जैसे आ रहे हैं वो waves पकड़े रखिए and push it inside. वेव को खराब मत होने दीजिएगा, वेव दिखते रहना चाहिए जहां से भी आप दिखा रहे हैं. जस्ट पुश दिस इन. ओके, कीप योर वेव्स बीइंग सीन एवरीवेयर. सिमिलरली अभी हमने पहले टॉप सेक्शन लिया, फिर राइट साइड से लिया था, अब आप लेफ्ट साइड से लेंगे सेम. सो आई एम गोना टेक अनदर सेक्शन फ्रॉम हियर. यू कैन जस्ट पुश दिस इन स्लाइटली. I'm taking a diagonal from here, a nice thick diagonal. इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे and you start twisting, 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 twisting. Nice flower. Only 2 to 3 strands in your hand and push this inside to make a nice flower. Okay? Once you have this flower in your hand, you will take your U-pin and right side पे जो आपका डोनट दिख रहा है इसे भी कवर करना है. You will use this and just go slightly inside and push everything in this. Okay? आपका waves अभी भी दिखते रहने चाहिए, पूरा मेसी मत कर देना, याद रहे. That's the most important part of the complete hairstyle. So you're going to do that. Again go on the other side. ये जो छोटे छोटे एक बाल के strands है ना, ये आप आगे रखिए, ये नेचुरल दिखना चाहिए. अगर आपको ये ज्यादा भी लगेगा आप लास्ट में एक साथ लेके उसको पिन डाल सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट. वो और नहीं भी डालेंगे, दैट्स नेचुरल ब्यूटी. एक बाल थोड़ा लाइक हाउ वी हैव डन दिस. ये हमने जो फ्रंट में छोड़े हैं पीसेस 2-3, ये हमने जानबूझ के छोड़ा है, ऐसा नहीं कि छूट गया है. वी डेलिबरेटली लेफ्ट इट बिकॉज वो एक नेचुरल ब्यूटी है. वैसा ही यहाँ पर भी अगर कुछ छूटेगा आप बाद में चाहे तो उसको पिन भी कर सकते हो, आपको नहीं करना आप उसको नेचुरल भी रख सकते हो. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, taking another section. Do not take a very thick section also because then you will get stuck. अगर आपने बहुत ज़्यादा thick section लिया तो भी आप एक ही जगह पे stuck हो जाएंगे. So try not to take very thick section also. Try to keep medium. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत thin section से काम करो. That will become like very time consuming for you. But do not try to keep very thick also. That can make you actually stuck there. Nicely push this inside like how I am doing it. आपको ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, ये naturally बहुत अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा and you will get a very good flower. Use this and push it in the center और बहुत ही प्यार से उसे अंदर की तरफ पुश कर दीजिए.
डू नॉट वरी, देयर इज अ डोनट। तो आपके मॉडल को कहीं पे चुभने नहीं वाला है पिन। आपको शुरू में थोड़ा डर लगेगा, जब आप इसे 5-6 बार कर लेंगे तो आपका वो डर भी चला जाएगा। जस्ट रिमेंबर देयर इज अ डोनट, आपको उस डोनट के अंदर ही डालना है हर जगह से, ठीक है। आपका एंटायर मोटिव होना चाहिए कि मुझे डोनट को कवर करना है, सिंपल, दैट्स इट। नाउ आई एम टेकिंग अगेन फ्रॉम दिस साइड so that I can cover the donut on here. Take this section, जो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं उनको थोड़ा साइड में रखिए। Take this section इस तरफ से, अभी राइट साइड से आते हुए, just twist this nicely, hold it in your hand, थोड़ा हम उसे ओपन करेंगे, ज्यादा भी ओपन नहीं कर देना, फ्लावर बनना चाहिए। Just leave 2-3 hair strands in your hand. Push this in. Take your wave. वेव को मेंटेन रखिए। देख रहे हैं मैंने नीचे से लिया, लेकिन मैंने वेव को पूरा खत्म नहीं होने दिया। ओके, कीप योर वेव इंटैक्ट। ये वेव इंटैक्ट रहना चाहिए। ऑल दैट यू हैव टू डू इज रोमांस विद द हेयर। डोंट ट्राई टू पुश एवरीथिंग, जस्ट हाँ अंदर ही पुश करना है। आप ध्यान रखिए कि वेव क्रिएट जो हो रहा है वो रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। So I'll just push this in slightly here, and my wave is still intact. एक ही बाल में से 3 वेव निकला है, 1, 2, 3, 4, वो वेव रहना चाहिए। Okay? Going a little more ahead from here, same I will cover the donut on the other side. मैं अभी थोड़ा चेयर टर्न करके आप लोगों को इस साइड से भी बता देता हूँ। I'm going to take this. Can you keep this in your hand? Thank you. Take a little piece from here and go on your left side. आप जाइए अपने लेफ्ट साइड पे, जरूरी नहीं आपको यहीं पे करना है। अब आपको उस साइड कवर करना है ना, तो आप जाइए अपने बालों को उस तरफ सेक्शन लेके जाके, from here you twist this into 2 parts, इस डायरेक्शन में। So you might have to change your directions in order to cover your donut completely. आप अपना डोनट को कवर करने के लिए आपको चारों डायरेक्शंस में जाके भी करना पड़ेगा। Just slightly open, slightly open, slightly open this, and a nice flower. Okay? Take that wave in your hand and use your pin, a nice U-pin. Look down, babe, and push it inside. I'm going to take this small wave and undress it in also a very nice way. Give me another pin. ये जो एक और हमारे यहाँ से बाहर आ रहा है, इसे भी अच्छे से ड्रेस करना है। हाउ आई डू इट, यहाँ से पकड़ा, एक वेव में से 2 वेव बना दिया। वॉच इट, ये एक वेव है, इसको यहाँ से पकड़ा, 2 वेव बना दिया और बड़े ही प्यार से उसे पिन करके, सॉरी, डोनट के अंदर डाल दिया ताकि वेव बना हुआ रहे। ओके, लास्ट 2-3 सेक्शंस, बस हमारे पास लास्ट के 2-3 सेक्शंस बचे हैं, उसमें हमें फोकस करना है कि हम नीचे से भी उसे अच्छे से कवर करें। हमने टॉप, राइट, लेफ्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया, वेव्स बनाए रखे, मेंटेन रखा। नाउ यू नीड टू मेक टू अंडरस्टैंड कि ये नीचे भी बराबर से रहना चाहिए। सो विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द बीनीथ सेक्शन नाउ। आई एम जस्ट टेकिंग दिस अप। कैन यू होल्ड दिस? लुक डाउन। यू आर जस्ट गोना होल्ड दिस अप in your hands. Twist it, twist this, twist this. Remember, अगर आप सोचेंगे कि अरे ट्विस्ट ही तो करना है तो मैंने टोंग्स क्यों किया, अगर आप बिना टोंग्स के इसको ट्विस्ट करके डायरेक्ट करने जाएंगे, होएगा ये कर्ल आएगा, वेव आएगा? नहीं आएगा। ओके, so that is why the tongs are very important. The tong that we use, that is what is making the whole up style come out very neat, very curly, wavy, and bringing that romance into the hair. Yeah, so tonging is really important in this. Leaving just 2-3 sections in your hand here and push this inside to create a nice flower. Okay, अभी हमारा फोकस है कि हम डोनट को नीचे की साइड से भी कवर करें। हमने टॉप, लेफ्ट और राइट तो कर दिया है। Look down. And push that slightly inwards. That's it. Oh, we have some businessmen also standing there. Sir, आप businessman कब से hair dressing सीखने लग गए? Nice.
No, but I really appreciate all the businessmen who are into the business because they really thrive to make people like us. They really do things out of the box in order to build a brand, a stage, an audience, a landscape for artists like us, and I really appreciate that effort that they make. Taking another section from here, you're just gonna twist the hair nicely. आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा थिक है, इसे थोड़ा हम थिन कर सकते हैं. मैं इस थिकनेस को भी लेके पूरा एक अच्छा फ्लावर बना सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है थोड़ा थिन रखूंगा ना नीचे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग स्लाइटली थिन सेक्शंस. उसे थोड़ा कम कर दिया मैंने. डिवाइड दिस इनटू 2 nicely and open the wave here. 2 3 4 5. लास्ट में सिर्फ 2 से 3 स्ट्रैंड हाथ में रखेंगे and you will push this inside to make a nice flower. Okay? You see this? ये वेव जो बन के आ रहा है ये ऐसा ही आना चाहिए कर्ल में. Okay? Once you have this, can I have the U-pin? Thank you. Look down. अब नीचे से उसे कवर कीजिए. नीचे से यहाँ से लेना है and push it inside the donut very nicely so that it stays secure. Okay? यहाँ से भी एक अच्छा सिक्योर बनना चाहिए. आप कभी कभी अगर चाहे तो ऐसे कुछ स्ट्रैंड्स ओपन भी रख सकते हैं, यानी कि यू कैन लीव दीज लूज ऑल्सो. अगर लास्ट के आपको 3-4 सेक्शंस ऐसे ही लूज छोड़ने हैं तो उसको वापस से टॉन्स करके और खाली ब्रश करेंगे ना तो ये वेव बन के आ जाएगा. ओके और आप उसे लूज छोड़ सकते हैं तो यहाँ बंद दिखेगा, यहाँ वेव दिखेगा और यहाँ नेचुरल. बट इफ यू वांट टू पुट इट कंप्लीटली इनसाइड लाइक हाउ आई एम डूइंग इट टुडे तो आप वो भी कर सकते हैं. लास्ट 2 सेक्शंस, ये सिर्फ लास्ट के 2 सेक्शंस है. आफ्टर दैट वी गोइंग टू फिनिश द स्टाइल फॉर यू. वॉच इट. होल्ड द सेक्शन, ट्विस्ट इट नाइसली, open it into making a nice petal. Just hold the last 2-3 hair in your hand and push the rest entire hair inside. Okay? Be very gentle and do not hurry and worry. Remember. Another pin. यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉन्ग वेव आ रहा है, मैं चाहता हूँ मैं उसको 2 में डिवाइड कर दूँ. लुक डाउन. सो आई एम जस्ट गोना पुश दिस स्लाइटली इनसाइड हियर बाय क्रिएटिंग दैट 1 वेव इनटू 2. दैट्स इट. दैट्स माय लास्ट सेक्शन. आई एम गोना कीप इट ऑन दिस साइड. ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट अप एंड slightly open these, open these, open these, open, open, open. Just keep 2-3 hair strands in your hand and push this. This was my last section. आप इस वेव को पकड़ेंगे, maintain that wave and push it inside the donut very nice and neat. One more. Just a few hair strands here and there. You can push them also inside. अब जो मेरा शेप है, आपको जब पूरा बन हो जाए, you need to take 2 steps back and see how the bun is looking. Is there something that you need to put a little more inside? Is there something that you need to bring in a little more out? I'll just take a look at that. यूजुअली हम सैलून में मिरर यूज करते हैं देखने के लिए. यहाँ पर जब मिरर नहीं होता है, या आपके पास भी कभी होगा ना, ब्राइड्स के पास जाएंगे, सामने मिरर है नहीं है, ऑलवेज मेक श्योर टू डू वन थिंग. हेयर स्टाइल, हेयर कट, ब्लो ड्राई जो भी आप कर रहे हैं ना, करने के बाद 2 स्टेप्स पीछे लीजिए एंड लुक एट इट नॉट एज अ स्किल्ड पर्सन बट एज एन आर्टिस्ट. मैं सभी से कहता हूँ कि आपका प्रोटोकॉल तो आपको फॉलो करना ही है. हमें पता है हेयर कट करने के लिए या टॉन्ग्स करने के लिए A+B+C एक रूल है जो सभी एकेडमी में सिखाया जाता है. लेकिन थोड़ा अगर आप उस आर्टिस्टिक तरीके से देखना चाहते हो ना, तो A+B+C फॉर्मूला करने के बाद ना वो टॉन्ग्स रखो, कोम, सीजर सब रखो, ब्लो ड्राई सब हो गया, रखो करने के बाद, और 2 सेकंड ऐसा पीछे जाने का और खुद देखने का कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा चाहिए, मुझे कैसा लग रहा है. एंड दैट्स व्हेन योर आर्टिस्ट विल स्टार्ट कमिंग आउट. तब आपको लगेगा कि नहीं
मुझे लग रहा है ये साइड वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, मुझे इसको कम करना है, तो करो, इट्स योर लुक, गो फॉर इट, डोंट स्टिक टू A + B + C, वो तो है ही, वो तो हम सब कर रहे हैं ना, आपका टच क्या है उसके अंदर, वो A + B + C के बाद आएगा, तो फॉर दैट जस्ट टेक 2 steps away and take a look at it, alright? So I think मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड पे ऊपर यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम करना है और राइट साइड पे यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना है, so I'm just gonna take a little pin और इस वेव को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ, एंड सिमिलरली यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वॉल्यूम में इसको पुश करूँ, तो आई एम टेकिंग दीज हेयर स्ट्रैंड्स एंड आई एम पुशिंग देम इनसाइड सो दैट जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बाहर आ रहा है मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ. गिव मी वन मोर पिन. And do it very aesthetically. Nice and neat. Okay? No, thank you. Now the final thing, the front, what I'm going to do is, I'm going to use the same tong and do a very nice flick. एक ही बार में होना चाहिए, 2 बार करने का भी जरूरत नहीं पड़े. कभी कभी अगर लगा कि नहीं मजा नहीं आया तो एक बार और, तीसरा नहीं जाना चाहिए. ओके, हाउ डू यू डू दैट? पुट द टोंग ऑन एंड ब्रिंग इट अप ऑन मे बी 200 इज ऑल्सो फाइन एंड 210 इज ऑल्सो फाइन. मैं कैसे डिसाइड करता हूँ मेरा टेम्परेचर टोंग्स का? अगर मैंने ऑलरेडी ब्लो ड्राई किया है बालों को हीट दे के, यानी मैं बालों में हीट दे चुका हूँ जिससे कि एक शेप में वो आ गया है, तो मैं 200 पे भी कर लेता हूँ. लेकिन अगर मुझे कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि नहीं फास्ट करो, तो हमको हमेशा टाइम नहीं मिलता है कि पहले ब्लो ड्राई करो फिर टोंग्स करो. हालांकि करना आपको वैसा ही चाहिए. ऑलवेज यूज अ ब्लो ड्रायर फर्स्ट एंड देन गो फॉर योर टोंग्स. दैट मेक्स द टोंग इफेक्ट लुक वेरी नीट, वेरी नाइस. बट इफ यू डोंट हैव दैट टाइम, इट्स ओके, यू कैन जस्ट डायरेक्टली डू द टोंग, बट हीट थोड़ा ज्यादा, टेक्निक थोड़ी और अच्छी, थोड़ा क्रेज, थोड़ा टाइट. ओके, so I'm starting with, let's say we'll start from the bottom section. ये जो एक बाल मैंने हाथ में लिया है, just hold that, open the clamp, push this inside, एक बार घुमाया सिर्फ, और एक बार घुमा के सीधा नीचे आ जाओ. फिर थोड़े ज्यादा है लंबे, तो इसको एक और बार घुमाओ, सीधा नीचे आ जाओ. करते 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 just leave the hair. You see this natural wave coming out? बस ये इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. फ्रंट में पूरा उसको ऐसा गोल घुमा के मत छोड़ना, वो बहुत ज्यादा टिपिकल दिखता है. डज नॉट लुक वेरी नेचुरल. दिस इज व्हाट लुक्स नेचुरल, नाइस एंड वेरी एलिगेंट, वेरी बॉलीवुड. ओके, वॉच दिस अगेन. Again you will take this section, hold it up in your hands and एक ही बार खाली go towards the gravity like this. टोंग्स को करने का भी एक तरीका है. आप लोग, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो आप ऐसे करने लगते हो. ये मत करो, आप इसको इस एंगल में बाहर लाओगे ना, आपको वॉल्यूम आ जाएगा बालों के अंदर. ये बाल जो ऐसे आना चाहिए ना, ये ऐसे आने लगेगा. आपको चाहिए वॉल्यूम तो आप उस तरीके से कीजिए, बट फ्रंट में वॉल्यूम नहीं चाहिए तो आप नीचे की तरफ आइए. ओके, यू विल टेक द लास्ट सेक्शन हियर, टोंग दिस अप, roll it inside nicely, and gravity, remember gravity is this. Gravity is this. Okay, does that look nice? It looks so elegant. Just open this nicely. आप अपने हाथों से भी इसे ओपन कर सकते हैं, and she will look really cool. You see it from the other side. यहाँ से जो एक स्ट्रैंड है, जो हमने पर्ल वो फ्लावर बनाया था ना, उसका ये जो 2-3 बाल रह गए थे, I will take that also and just slightly push it into a nice wave. खींचना नहीं है, उस बाल को पर्ल बाहर आ जाएगा, उससे सिर्फ थोड़ा सा लीजिए, उसे भी छोड़ दीजिए. You see these? ये छोटे छोटे एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, विच इज मेकिंग द हेयर स्टाइल लुक लाइक, अरे अप स्टाइल भी है, थोड़े बाल छूट भी रहे, और जो छूट रहे वो मेसी भी नहीं लग रहे. इट्स लुकिंग नाइस, वेवी. दिस इज फैशन. ओके, दिस मेक्स द लुक वेरी एस्थेटिक.
सिमिलरली ऑन द अदर साइड, जब आप दूसरे साइड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टोंग का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा. सो यू कीप इट हियर. ओके, I'll turn the chair that side so that you guys can watch it. Similarly, you can stand on this side. Hold this. एक बार घुमाया, फिर बालों को घुमा के. Remember gravity. Gravity is, आप इसे ग्रेविटी बोलिए या 0 डिग्री समझिए, जिसको जैसे समझता है उसको बस वैसे याद रख के आपको याद रहे कि आपको टोंग्स इस डायरेक्शन में करना है. That's when you will get a nice flick, a nice wave and not curl. Okay? Another section. I would just like to know from the console, is another artist ready or do I have time? I have 10 minutes, 5 minutes, 10 to 15 minutes I have. Okay, nice. I'm gonna push this in slightly, roll this up, roll this up, roll this up, and gravity. Leave this down naturally, just leave it loose. मैं तो ये करने के बाद भी कभी कभी ऐसे बालों को खुद से हाथ से ऐसे पकड़ के I stretch it so that it looks even more natural. जरूरी नहीं कि वो कर्ल ही दिखे, वेव भी दिखे, थोड़ा ऐसा मेसी वेव भी दिखेगा ना, it will look nice only. Don't worry about it. हमेशा एकदम typical staccato effect create करने का कोशिश मत कीजिए. Try to keep it as natural, as soft as you can. Last section on the top. Whenever your tongue is near to your model's face, be very careful. Her face is her asset. Wow, you already look so pretty. अभी मैं करते करते ही I'll just show you what I did right now. When I was just doing her hair, I just felt like I want to keep a side partition. इनका ये जो पार्टीशन है, ये हाफ राइट साइड पे रखा था और हाफ लेफ्ट साइड पे रखा था. बट अभी जब मैं टोंग्स कर रहा था, इट वॉज जस्ट एन आर्टिस्टिक फीलिंग इनसाइड. एक अंदर जो आपका फीलिंग होता है ना एज एन आर्टिस्ट, जब आप देखते हैं तो कैसा लग रहा है, मुझे वो देख के लगा कि मैंने इसको एक राइट साइड पे रखा है, एक लेफ्ट साइड पे रखा है, बट अगर मैं दोनों को एक ही पार्टीशन में रखूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कर दिया. तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट योर इनर इंस्टिंक्ट. कभी कभी करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप वहाँ स्टॉप कर जाओ, आप उससे ज़्यादा मत करो. कभी कभी लगता है नहीं मज़ा नहीं आया, थोड़ा और वेव होना चाहिए, थोड़ा और वॉल्यूम होना चाहिए, गो फॉर इट. डोंट ऑलवेज स्टिक टू ओनली कि ये सीखा है तो यही करना है. वो जो सीखा है उतना ही सीखेंगे तो अपन हमेशा वहीं बैठे रहेंगे. यहाँ आना है तो थोड़ा यू विल नीड टू पुट योर सेल्फ कि व्हाट इज माई स्टाइल, व्हाट डू आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, मैं वो कैसे क्रिएट करूँ, मैं कैसे लोगों को बताऊँ कि मैं भी करूँगा लेकिन मेरे तरीके से करूँगा और वो सबको अच्छा भी लगेगा. दैट इज आर्टिस्ट. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक दैट वे, लाइक हाउ आई डिड इट हियर. नाउ सिंस वी हैव अ लिटिल मोर टाइम, आई वुड हैव, आप चाहे तो आपका हेयर स्टाइल यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं. अभी जैसे कुछ पीछे स्ट्रैंड्स रह गए, यहाँ पर मैंने इसको ओपन रखा. आई वॉन्टेड टू शो दिस हेयर स्ट्रैंड्स, आई हैव केप्ट इट, बट मुझे ये हेयर स्टैंड नहीं दिखाना है. डोंट वरी, जस्ट टेक इट अप. आपके फिंगर को लीजिए, जस्ट रोल इट अप नाइसली, एक साथ कर लो, एक वेव क्रिएट करो बाल के अंदर. कैन आई हैव यू पिन? ओके, इट्स बिहाइंड. एक वेव क्रिएट करो और पुश कर दो उसको इनसाइड. दैट्स इट. एक भी हेयर स्टैंड नीचे नहीं है. तो इट इज अप टू यू. यहाँ पर मुझे इसको नहीं डालना था अंदर, मैंने नहीं डाला. पीछे वाला मुझे नहीं दिखाना था, मुझे अंदर ही उसको पुश करना था, मैंने कर दिया. तो इट इज ऑल अबाउट करने के बाद अब क्या कुछ और करूँ वैसा. ओके, इफ यू गो टू सी द हेयर स्टाइल इज एक्चुअली डन. But since we have a little more time for another artist to come here, I would like to show you guys a few more things also that you can do while you're doing the hairstyle.
शुड वी यूज स्टड्स? थोड़ा स्टड्स यूज करना चाहिए। कितने लोग हाँ बोलते हैं? ओके कितने लोग बोलते हैं नहीं ऐसा ही अच्छा है, इसमें मत डालो और कुछ? कोई भी नहीं। अच्छा बाकी लोग जिन्होंने ना फर्स्ट ऑप्शन में हाथ उठाया ना सेकंड में, आप लोग क्या करने आए यहाँ पे? लंच पिक्चर्स don't worry. So what we're going to do here is I'm going to use a little stud and I'm going to bring in a little more fashion into it, a little more liberacy into it. Let's see how we do that. What you simply can do is इस तरीके के बीड्स आते हैं। कल भी हमने बीड्स यूज किए थे, कल जो मैंने बीड्स यूज किए थे वो अलग थे, आज जो बीड्स यूज करा वो अलग है। ऐसा एक पर्ल आता है एंड यू हैव अ नाइस थिन कॉपर स्ट्रैंड टू इट। आपको बहुत ही प्यार से उसको एक कॉपर स्ट्रैंड में डालना है यहाँ पे बालों के अंदर, और बहुत प्यार से उसको ऐसे रख के ऐसा आपको रोल करना है बालों के आसपास पूरा। See, I'm doing it in front of you. और करने के बाद पर्ल को ऊपर, वायर को नीचे रख के दबा दो अच्छे से एंड लीव इट। योर पर्ल विल स्टे देयर। ओके, आई एम गोना यूज अ लिटिल मोर। और ये पूरा रैंडम तरीके से आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं पर्ल्स को। ऑलराइट, सो आई एम पुटिंग वन हियर, आई एम गोना पुट अ लिटिल वन हियर आल्सो। सो जस्ट यूज दीज बीड्स, रोल इट अप, बालों के आसपास रखते हुए उसे घुमा दीजिए, वायर को भी नाइसली नीटली पुल इट इनसाइड। वायर को पूरा पर्ल पे स्टिक करके जस्ट लीव इट नेचुरली सो दैट द पर्ल इज सीन एंड लीव इट हियर। ऑलराइट, टेक अनदर वन, गो फॉर अ फ्यू मोर। बहुत ही प्यार से इसे रखते हुए यहाँ रखना है एंड रोल द वायर, रोल द वायर, रोल द वायर विदाउट पुशिंग योर वेव टू मच। आपके वेव्स बिगड़े नहीं, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, कीप योर हैंड्स जेंटल व्हेन यू डूइंग दिस। जब आप ये टेक्निक कर रहे हैं हाथों को बहुत ही जेंटली यूज करना है। अगर कहीं पे आपको लगे वेव थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, जस्ट गो बैक टू इट एंड नाइसली यूज योर टेल कोम टू पुट इट बैक। Okay, using a little more beads, move a little up. जैसे ही आप रूट पे आ जाएंगे, roll the wire, roll the wire, roll the wire. Oh, one very interesting question I didn't ask only in the audience. How many of you actually do up styles? आप में से कितने लोग actually up styles करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh man. Anybody else? आप आधा ही अप स्टाइल करते हो ऐसे? जो लोग इधर करते हैं मतलब मैं आधा अप स्टाइल करके छोड़ता हूँ ऐसा। इधर मतलब हाँ मैं पूरा अप स्टाइल करता हूँ। Nice. And how many of you do only haircuts? सिर्फ haircuts and styling? अरे बाकी लोग क्या लंच करने आए हैं? Okay, nice. I actually want you guys to go and start with styling a little more. Styling has also taken a new league in the industry and trust me, कभी-कभी ऐसा होता भी है कि not everybody will have that long hair or not everybody will have that short hair और आपको लगेगा कि मैं हेयर कट से कैसे करूँ। हमेशा हेयर कट से नहीं करना है। मैं भी हेयर कट करता हूँ। इनफैक्ट मुझे अगर आप पूछेंगे मुझे अप स्टाइल, ओपन स्टाइल और हेयर कट क्या तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे हेयर कट सबसे ज़्यादा पसंद है, ट्रस्ट मी। बिकॉज मुझे लगता है ये स्टाइलिंग रोज़ थोड़ी कोई करेगा। एक हेयर कट ऐसा चीज़ है, एक औरत हो या आदमी हो, रोज़ कट करके वो कैरी करता है, तो नेचुरली ब्यूटी रोज़ दिखता है उसका। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बट यू शुड लर्न, एवरीबॉडी शुड लर्न। आपको सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, गोइंग ऑन द अदर साइड, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे साइड पर भी जाएंगे एंड roll this up nicely, roll the wire and keep pushing it in.
I want to know from the audience, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है? Anybody? 1, 2, 3, 4, 5. वेरी नाइस. आप लोग ऊपर आ जाइए, मैं नीचे बैठता हूँ. और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 साल से कम एक्सपीरियंस है? हाउ मेनी ऑफ यू? वो काफी है 2 साल से कम एक्सपीरियंस वाले. नाइस. You look very, means you are young. I don't mean to say you look young. May I know your name? Kritika. Ritika. Okay. What inspired you to become a hairdresser? Mama. You're like me. मेरे भी फादर ने ही मुझे इंस्पायर किया. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ऑलरेडी हमें जानते हैं, बट my name is Vivek Shyam Bhatia and my father is Shyam Bhatia. He is also a hairstylist, a very renowned hairstylist. आप जानते हैं? आप हमारे स्टूडेंट हैं. ओके, थैंक यू. बाइंदर ब्रांच. नाइस. तो मैं भी मेरे फादर से ही इंस्पायर्ड हूँ. एवरी टाइम आई यूज्ड टू लुक एट हिम डूइंग हेयर ड्रेसिंग, आई यूज्ड टू फील लाइक अरे ये जो कर रहे हैं ये मुझे भी करना है. हाउ इज ही बिकमिंग सो फेमस? हाउ आर पीपल कमिंग टू हिम एंड डिपेंडिंग ऑन हिम सो मच दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू. जैसे हम डॉक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं कि हाँ, एक भरोसा होता है कि इनके पास जाएंगे तो ये सब कुछ हमारे सही कर देंगे. वैसे ही आई यूज्ड टू सी पीपल इन द सैलून जब मैं छोटा था तब, कि लोग आते थे ऐसे मेसी बालों के साथ, एंड when they used to go out they used to be like, wow, they have a smile, you know, clients have a smile on their face when they're going out. Why? Because they're looking good with hair color, with haircut, with styling. जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना हेयर ड्रेसिंग का, तो उसके शुरू के 6 महीने, मैं पूरा फर्स्ट ईयर भी नहीं बोल सकता, all I can talk about is the first 6 months. It inspired me a lot when I saw people doing that thing in my salon. जब मैं सैलून जाता था और हमारे सीनियर हेयर ड्रेसर्स जो थे, मुझे लगता था कि हम सब यही चाहते हैं ना कि हम एक ऐसा जॉब करें जहाँ पे हर दिन नया हो. हम सब चाहते हैं कि हर दिन नया हो. बॉस, सैलून में हर आवर नया होता है, हर घंटा नया होता है. 2 बजे मैं किसी का रेड हेयर कलर कर रहा हूँ, 5 बजे कोई आया जिसका मैं ब्लॉन्ड हेयर कलर कर रहा हूँ, 7 बजे कोई आया जिसको मैं शॉर्ट हेयर कट दे रहा हूँ, 9 बजे कोई आया जिसको मैं लॉन्ग लेयर्स दे रहा हूँ. आप हर दिन की बात कर रहे हो. मेरा हर एक घंटा अलग है, मेरा हर एक आवर अलग है. मैं दिन में 5 अलग लोगों से मिल रहा हूँ. एंड दिस थिंग इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट हेयर ड्रेसिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई और मुझे ये फील हुआ, तो मैं सभी से कहता हूँ कि मैंने हेयर ड्रेसिंग को नहीं, पर हेयर ड्रेसिंग ने मुझे चुना है, और मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. Okay, we also have one more session, I forgot about it, which is called as doubt solving session. So if you guys have any doubts, अभी जो हमने हेयर स्टाइल क्रिएट किया, अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व इट अप फॉर यू. आपको अगर डाउट है तो आप सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, हम माइक लेके आपके पास आएंगे और आपका डाउट सॉल्व करेंगे. एनीबॉडी? ऑल क्लियर? सबको सब समझा? वेरी नाइस. मेरे एक एजुकेटर थे जिनसे मैं सीख रहा था. उन्होंने एक बार मुझे एक चीज़ बताया था. उन्होंने भी ऐसे ही पूछा कि विवेक, और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी थे, मैं अकेला नहीं था बैच में. जब मैं सीख रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, सबसे पूछा कि किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो सिखाया? तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि सबको समझ गया था. फिर मेरे प्रोफेसर ने बोला कि विवेक, जब भी ऐसा होना लाइफ में, तो सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, तीसरा ऑप्शन नहीं होता है. मैं बोला क्या? बोले, या तो तूने इतना अच्छे से सिखाया है कि सबको सब समझ ही गया और किसको डाउट रहा ही नहीं मन में, इतना डिटेल में सिखाया, और दूसरा किसी को कुछ नहीं समझा, इसके लिए समझा ही नहीं, क्या डाउट पूछेगा. तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन है? फर्स्ट वाला. आपको डाउट है? ओह, ओके ओके. कैन वी प्लीज गिव हिम द माइक, ही हैज अ डाउट. यस बडी. Next artist. अच्छा, okay. Okay. Yes sir. सर, ये जो अभी तो आपने मीडियम लेंथ का हेयर लिया है. Yes. जो हम सैलून में होते हैं तो
किसी भी प्रकार का लेंथ का कोई भी हेयर आ सकता आ सकता है है ना। तो लॉन्ग लेंथ अगर आती है हाँ तो उस कंडीशन में जो डोनट है शॉर्ट लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए, या ये काफी है? ऑनेस्टली अभी इनका जो लेंथ था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैंने पर्पसली इनको हमारे मॉडल लिया जो कि डिफ़िकल्ट है। इनके बाल बहुत लंबे थे, ये तो टोंग्स करने के बाद और पोनी टेल करने के बाद ये ऊपर आया है। अगर जी। आप इनके बाल विदाउट पोनी टेल और विदाउट टोंग्स देखेंगे, इट इज़ हियर। जी वो पोनी टेल किया है इसके लिए ऊपर गया जी। और टोंग किया इसके लिए ऊपर आया, वरना ये काफ़ी लंबा था। तो ये अगर आपने कर लिया तो आप शॉर्ट जो थोड़े कम हेयर होते हैं ना उसमें थोड़ा सा और आसानी से कर सकते हैं। जी। एकदम शॉर्ट आ गया तो आप ये हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। और एक डाउट हो रहा है, इसमें अगर स्टेप कट होता है या लेयर कट होता हाँ। है तो हम दोनों में ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं या कुछ? यस आप कर सकते हो, लेकिन अगर लेयर्स बहुत ज्यादा है और इंटरनली डिस्कनेक्टेड लेयर्स है जी मुश्किल होगा। ठीक है। यस और इसमें एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे मूव या वॉल्यूम यस यस अ वेरी गुड क्वेश्चन। शार्पनेस लाने के लिए एकदम स्मूथली। यस वेरी गुड क्वेश्चन, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे बैकबोन है और उससे हम काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग में हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है। तो इनके बालों में मैंने क्या यूज़ किया है, जब मैं ब्लो ड्राई कर रहा था जी तो मैंने ब्लो ड्राई के लिए कंस्ट्रक्टर एक स्प्रे आता है, जी। उस कंस्ट्रक्टर को मैंने गीले बालों में स्प्रे किया, सारे बालों में अच्छे से, और फिर एक टाइट ब्लो ड्राई किया। And after the blow dry, then my hair formed a very nice shape. It took a very good mold. वो mold की वजह से मेरे को एक बेस मिल गया। तो कंस्ट्रक्टर इज वन स्प्रे दैट आई यूज। सेकेंडली मोल्ड बनने के बाद मैं अगर कुछ शेप क्रिएट कर रहा हूँ वो बाल में बना रहे, उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, आई हैव यूज्ड Elnet. There's a spray called Elnet, which is how do I say, मैं ब्रेकफास्ट लंच में भी Elnet खा सकता हूँ। ऐसा स्प्रे है वो। मस्ती कर रहा हूँ, खाना मत सच में। When I say something like this, that means I cannot survive without that one styling product. ऐसा सबका एक होता है ना कि कोई एक कौन सा चीज़ है जिसके बिना आप हेयर ड्रेसिंग आप बोलोगे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, सबका एक फेवरेट होता है। बिल्कुल। हाँ, मेरा ये है Elnet, so I like using that. Okay, welcome. What's your name? नासिर हुसैन। Nasir Hussain. Can we have a huge round of applause for Nasir Hussain? He's being very kind to us. कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सबको है, कोई पूछ नहीं पा रहा है, और फिर कोई एक पूछता है ना तो 4 लोगों का डाउट्स एक साथ क्लियर कर देता है, 4 और भी लोगों को समझ में आ जाता है, मुझे भी ये डाउट था, अभी तूने पूछ लिया, अच्छा हुआ। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु आस्क डाउट्स। एनीबॉडी एल्स? इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस दैट आई कैन आंसर फॉर यू? नो? ओके, या। टॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? आप कहाँ पे है? हाय हाय सर। हाय। टोंग्स लास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? एज आई सेड, आई यूजुअली डू द प्रेप वेरी नाइसली। तो जो मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया ना, वो कंस्ट्रक्टर को यूज करने के बाद जो एक कंस्ट्रक्टर तो मुझे हेल्प करेगा ही, और उसके बाद जो आप स्प्रे यूज करते हैं वो। अब इनके बालों में मुझे वेव्स ही रखना था, आई डिडंट वांट टू क्रिएट टू मच ऑफ इट, दैट्स व्हाई फॉर मी Elnet वाज फाइन। अगर आपके पास रेजिस्टेंट ड्राई डिहाइड्रेटेड हेयर आते हैं, all that you can do is use a strong spray, because we are not endorsing any particular brand. इसके लिए हम मास्क करके रखते हैं सारे स्प्रेज को, हमारा कंपनी पॉलिसी है। बट स्ट्रॉन्ग स्प्रेज भी काफ़ी कंपनी के आते हैं, शॉर्ट्सकॉफ में आता है, लॉरियल में आता है, वेला में आता है। जिसका स्ट्रॉन्ग स्प्रे होगा ना, यूज दैट स्ट्रॉन्ग स्प्रे एंड यू विल गेट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड इनटू इट। बट आपको हेयर ड्रेसिंग करते करते खुद से समझ में आना चाहिए कि कब मुझे माइल्ड स्प्रे का जरूरत है और कब मुझे स्ट्रॉन्ग स्प्रे का जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका नाम? प्रतिभा। हाँ, आई नो, प्रतिभा कालिया। सो प्रतिभा, अगर ऐसे बालों पे मुझे स्प्रे यूज करना है ना, मैं स्ट्रॉन्ग स्प्रे नहीं यूज करूंगा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग स्प्रे किया टोंग करने के बाद, वो टोंग ऐसे ही रहेगा, वो मैं उसको कितना भी फ्लावर बनाऊं, फ्लावर नहीं, फायर बनेगा। ओके, हमको फायर नहीं चाहिए, हमको फ्लावर ही चाहिए। तो आप माइल्ड स्प्रे यूज कीजिए, यूज Elnet एंड दैट विल वर्क वेल। ओके, और जहां आपको लगे कि नहीं मुझे टोंग्स जैसा है ना वो स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए और वो रहना भी चाहिए, माइल्ड मत यूज करो, स्ट्रॉन्ग यूज करो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतिभा। अदर साइड। ये मेरा लास्ट बीड है, इसके बाद आई वांट द ब्रांड वांट्स यू गाइस टू डू अ फन एक्टिविटी। थोड़ा ऑडियंस में जोश दिखाना है हमें कैमरा पे। सो कैन वी, यू गाइस वांटेड टू शूट राइट? अभी
Now I am going to say something and you guys have to repeat with full josh, okay? And we're going to capture each one of you in our camera. आप सब लोग आज हमारे इंस्टाग्राम पेज पे दिखने वाले हैं और आज ही अपलोड होएगा, तो आपका एनर्जी थोड़ा दिखना चाहिए कि कितने एनर्जेटिक है आप लोग. मैं एक चीज बोलूंगा, उसके बाद जो बोला जाता है आप सबको पता है. आपको सिर्फ वो बोलना है और जोर से बोलना है, ठीक है? एवरीबॉडी विथ मी. I have to hold it. It's already on. Oh my god, I have so many audience with me. एक बार सभी लोग जोरदार, because we are from Bombay and proud Mumbai कर बोलो गणपति बप्पा. Woohoo! Put your hands up, put your hands up. Thank you, thank you. Did you get it? You want me to go आगे? The brand wants to do it once again. Okay, now we'll do something else. We'll do how's the Josh and everybody will say hi sir. Okay? Hi wala hi nahi, hi. Okay? So I will say how is the Josh? Everybody say hi sir. Ek saath. I'm gonna put this on. Hello Mumbai, how's the Josh? How's the Josh? Lovely. You got it? क्या क्या करवाते हैं देखिए आर्टिस्ट से. All right, I was waiting for you guys to just give me a call. And here, can we have music for Deepa, please? Stand up. Music.